سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا ہے جس میں مختلف لوگوں سے شخصیات سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بلوچستان سائیکولوجسٹ ایسوسی ایشن کے صدر میر بہرام لیڈی صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور مختلف موضوعات پر آج ہم آپ سے جو ہے وہ شروع کریں گے سوال. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ سائیکولوجسٹ ایسوسی ایشن بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہے, تو سائیکولوجسٹ اور جو سائیکیٹرسٹ ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی دانش صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے ایک زبردست سیریز کا ابتدا کیا ہے جو کہ ایک زبردست کام ہے. ہم آپ کو خراج تحسین اس بارے میں پیش کرتے ہیں, اور آپ بلوچستان کے مسائل پر جو ہے وقتاً فوقتاً گفتگو بھی کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجیکل انٹروینشن, سائیکالوجیکل ایشوز کے نفسیاتی مسائل پر جو آپ نے آج کا جو پروگرام مرتب کیا ہے, یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے, ایک اہم مضمون ہے جسے جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں جو ہے اس سبجیکٹ کو اور خاص کر جو ہے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے درمیان میں فرق کو نہیں سمجھا جاتا ہے, اور جو ہے ان کو جو ہے ایک ہی سمجھا جاتا ہے. سائیکیٹرسٹ کا خود کا اپنا کام ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ کا خود کا اپنا کام ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ جو ہے اگر کوئی بھی سائیکالوجیکل ایشوز دیکھے جائیں, اور جو ریسرچ سے بھی ثابت ہے اور اسٹڈی سے بھی ثابت ہے کہ 95% جو بھی سائیکالوجیکل ایشوز ہیں وہ ایک سائیکالوجسٹ ہی ڈیل کرتا ہے. صرف 5% وہ ایشوز ہوتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ایسے ایشوز ہیں جو ایک سیویئر قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں یا اپنے ارد گرد ایسے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ان کے سینسز سے آؤٹ ہیں, جو اپنے ڈیلی روٹین کے کام کر نہیں پا سکتے ہیں, وہ جو ہے اچھے اور برے میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, تو پھر اس ٹائم اس کو سائیکیٹرسٹ کا ضرورت ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ایسا سائیکالوجیکل ایشو ان کو ہوا ہے جو لازم ہے کہ ان کی سرجری کی ضرورت ہے, ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے. تو جب تک ان کی سرجری یا میڈیسن نہیں ہوتے ہیں تو اس ٹائم تک وہ اپنے واقعی سینسز میں نہیں آتے ہیں, تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. یہاں پر انفارچونیٹلی بلوچستان میں جو بھی اگر کوئی چھوٹا سا سائیکالوجیکل مسئلہ ہو, جیسے کسی کو کوئی پریشانی بھی ہو, یا کسی کو کسی چیز سے خوف ہو, یا کسی چیز سے دباؤ ہو, تو اس حوالے سے بھی وہ جا کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور جو سائیکیٹرسٹ کو میڈیسن دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بندہ ہے جس ایشو کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ اس ایشو کو ختم نہیں کر پا سکتے, کیونکہ میڈیسن آپ کو وقتی طور پر ریلیف تو دیتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے لانگ ٹرم نہیں جاتی. اس میں صرف آسان سی اگر آپ کہیں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ سیویئر قسم کے سائیکالوجیکل ایشوز کے لیے ہوتے ہیں, اور سائیکالوجسٹ جو ہے سیویئر قسم کے ایشوز کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ جب سینسز میں ہوتے ہو تو سائیکالوجی پھر اس ٹائم اس کی کام سٹارٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بات صاحب, بالکل وہ ایک چیز ہے, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ کا شعبہ ہے. سر بلوچستان میں لوگوں کی نفسیات کا آپ کو علم ہے, یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی نفسیات قدر مختلف ہے باقی صوبوں کے نسبت سے. یہاں پر ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں کیا ہے کہ یہاں پر سائیکولوجسٹ کی تعداد کتنی ہے, ایک, اور نمبر دو کہ اس وقت بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کی نفسیات کے مطابق کتنے سائیکولوجسٹ یہاں پر بلوچستان میں ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ یہاں پر سائیکالوجسٹ تو اگر دیکھیں تو کافی ہیں سائیکالوجسٹ یہاں پر, لیکن جو گورنمنٹ کے لیول پر اگر کہ یا کوئی پریکٹس اپنا کر رہے ہیں تو وہ گنے چنے ایک ہی لوگ ہوں گے. اسی طرح سے جو انسٹیٹیوٹ بیہیورل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ یہاں پر سیکرٹری وارڈ میں بنا ہے, جو ڈاکٹر حضرت علی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمپل سائیکالوجی بھی موجود ہے. لیکن اوورآل اگر کہ دیکھا جائے ہر ایک جو 10 بندوں پر جو ریسرچ اسٹڈی سے ثابت ہوا ہے کہ کم سے کم جو ہر 10 بندوں کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا لازم ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ ہونا ضروری ہے. جی بالکل, تو اگر تو انفارچونیٹلی اگر آپ یہاں پر دیکھیں. جی 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 سر, فرمائیں.
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर देखें तो बलूचिस्तान में आपको गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में कोई साइकोलॉजिस्ट आपको नजर नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ उनके जो भी इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे दारुल अमान है जहाँ पर मस्ट है साइकोलॉजिस्ट का, वहाँ पर नहीं है। इसी तरह जेल में साइकोलॉजिस्ट का होना मस्ट है, वहाँ पर नहीं। हमारे अदालतों में साइकोलॉजिस्ट का होना मस्ट है, वहाँ पर उनके साथ नहीं। पुलिस में साइकोलॉजिस्ट का होना मस्ट है, लेकिन आपको जो है बलूचिस्तान में पुलिस के साथ कोई ऐसे साइकोलॉजिस्ट नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से जो हमारे जो रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट का होना मस्ट है, लेकिन वहां पर बेनजीर शेल्टर होम है जहां पर खवातीन को जो सर्वाइवर्स होते हैं वहां पर रखते हैं, वहां पर भी उनके पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो आपके जो एजुकेशन की तरफ देखें, क्योंकि हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट का होना लाजिम है, क्योंकि वो बच्चे को उसी के मुताबिक देता है कि बच्चे में कौन कौन सी टेंडेंसीज है, किस तरफ जो है इसको पढ़ना है, क्या रुझानात उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट उसमें नहीं है। इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो स्पोर्ट्स में भी मस्ट होता है साइकोलॉजिस्ट। तो वहां पर भी, यहाँ पर बलूचिस्तान में अगर स्पोर्ट्स का जाके देखें वहां पर भी आपको कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट का बिल्कुल ना होना बिल्कुल यहाँ पर जीरो है, क्योंकि बलूचिस्तान में इस सब्जेक्ट की तरफ देखा नहीं गया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन वही आज से जो काफी अरसे पुराना अगर के उनका करिकुलम देखे, उनके तरीक़ाकार देखे, आपके SBK है, आपके जो है ब्यूटम्स है, उनमें पुराने तरीक़ाकार से जो है साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। लैब्स उनके पास अभी भी नहीं है जो मस्ट है, नेसेसरी, क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक, एक साइंसी सब्जेक्ट है। तो इनके लिए लैब होना, प्रैक्टिकल काम होना मस्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं करवाए जाते हैं, और हमारे मुख्तलिफ जो भी इदारा उठा के देखो किसी इदारे में आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से आप खुद देख रहे हो बलूचिस्तान में कितने साइकोलॉजिकल लोग मसले मसाइल से दो चार हो रहे हैं। जिस तरह बहराम साहब ने कहा कि कम से कम 10 बंदों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, तो इस तरह बलूचिस्तान की आबादी 12 मिलियन से ज़ायद है, 1 करोड़ तकरीबन कोई 25 लाख के आसपास है। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान को लाखों ये साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भी होंगे सूबे भर में साइकोलॉजिस्ट? साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल हजारों की तादाद में मौजूद है, और वो अनफॉर्चुनेटली उनको किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और अदारे में कोई स्कोप नहीं है, तो वो लेक्चरशिप की तरफ जा रहे हैं। आपके जो भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चरशिप के जो पोस्ट अनाउंस होते तो वो वहाँ पर जाते। फिर इसके बाद जो प्राइवेट अदारे यहाँ पर मौजूद हैं, NGOs काम कर रहे होते, तो वो फिर NGOs को उनकी ज़रूरत होती तो फिर NGOs में वो अपने सर्विसेज दे रहे होते। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे साइकोलॉजिस्ट जाके सिर्फ सिंपल जो दूसरे साइंस के, आर्ट्स के सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे होते, जो प्रैक्टिकली तौर पर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी अमल दरामद है फील्ड में जो है। जब भी आप मीडिया के दोस्त हैं, अब मीडिया के दोस्त आप लोगों का 24/7 स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी, उसके साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में आप गुजर रहे होते हो, तो उसमें फिर नेसेसरी है कि आपको साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट लाजमी होता है। इंडिविजुअल लैंड ने जो आप लोगों के लिए कोई सर्विसेज का उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके साथ मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट उनके क्या पर हूँ, उनके पैनल पर हूँ। वो आपके बलूचिस्तान के मीडिया के लिए साइकोलॉजिस्ट के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। उन्होंने कुछ आइडिया तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उस हवाले से नहीं सोचा है। हमने 12 उनको कोशिश की है। कोविड-19 समझो एक बहुत बड़ा एक पेंडेमिक गुजरा है, उसमें भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने इस तरफ, इस सब्जेक्ट की तरफ बिल्कुल नजर नहीं दौड़ाया। उसमें ये है कि इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर हमारी एसोसिएशन ने इस पर काम किया, और हमारी एसोसिएशन ने अपने रजाकाराना वॉलंटरी सर्विसेज दी, जिसे जो है WHO ने और जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जो है हमारे काम को अप्रिशिएट किया, और हमारा जो पाकिस्तान में से कुछ ही केस स्टडीज उठाए, तो उसमें से बलूचिस्तान में से हमारे एसोसिएशन का केस उठाए। लेकिन अब भी गवर्नमेंट हमारी इस तरफ नहीं देखती है। इनका सीरियसनेस आपको उस टाइम दिखाई देता है अगर आप उनका मेंटल हेल्थ एक्ट
2019 उन्होंने जो है पास करवाया। आप मेंटल हेल्थ एक्ट 2019 जाके देखें, आपको जो है, हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमें रोना आ रहा है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिस्ट, जैसे आपको मैंने कहा, 95% जो मसाइल है वो साइकोलॉजिस्ट इसको डील कर रहा होता है, लेकिन उसमें मेंटल हेल्थ एक्ट कानूनी तौर पर बलूचिस्तान में साइकोलॉजिस्ट को जगह नहीं दिया गया है। उस एक्ट में कहीं पर भी आपको साइकोलॉजिस्ट नजर नहीं आता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को इस सब्जेक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी मालूमात है, कितना सीरियसनेस है। तो ये बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इस सब्जेक्ट के साथ और इसके लोगों के साथ जुड़े हुए नासमझी और नाआगाही मौजूद है। बिल्कुल बहराम साहब, इस पे बड़े लेवल पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ आपका शोबा नहीं है, जिस शोबे की भी तरफ आप जाएं तो वो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि उस पर जो है वो काम नहीं किया गया। आपका बहराम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ओवरऑल सिचुएशन से हमें आगाह किया। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में इस वक्त परसेंटेज के हवाले से, कोई एक रफ सा परसेंटेज कि कितने परसेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी बलूचिस्तान में ज़रूरत है इस वक्त? इसमें बलूचिस्तान में वही मैंने कहा कि हर चौथे बंदे को जो है साइकोलॉजिकल इशू से वो गुजर रहा है, उसको जो है लाजिम है कि साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ माहौल, सबसे बड़ी जो आजकल जो इस दौर में सबसे बड़ी बात है कि महंगाई आप खुद देख रहे हैं कि उरूज पर है। हर बंदे को जो है, ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उनको जो है अपना डेली लाइफ और जो अपना लेवलीहुड चलाना होता है। वो परेशान है कि कहाँ से अपने खर्चे बर्दाश्त करें। तो वो उस वजह से जो है वो स्ट्रेस में जाते हैं, उस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से घरों में आपको तशद्दुद के रुझानात बहुत नजर आए हैं, जिसकी वजह से जो है फिर आगे जाकर आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए कि जो मर्द ने अपने बच्चों को भी मार दिया है और अपने जो बीवी को भी मार दिया। ये केसेस यहाँ बलूचिस्तान में आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो तशद्दुद के खवातीन पर ज्यादा, बच्चों पर ज्यादा तशद्दुद भी सामने आए। तो ये सब इश्यूज इसी वजह के, जो बलूचिस्तान में जो सिनेरियो है, सिचुएशन है जो चल रहे हैं, इस वजह से जो है साइकोलॉजिस्ट, हर चौथे बंदे को जो है एक साइकोलॉजिस्ट की और साइकोलॉजी सर्विसेज की लाजमी जरूरत है, ताकि जो है सर्विसेज अवेल करें और जो वो मसाइल से बच सकें। जी, चौथे बंदे को नफ्सियाती मसाइल के हवाले से साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बहराम साहब बलूचिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। आप ओवरऑल सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे, हमारे नाजरीन को आगाह कर रहे थे। बहराम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जो सूरत हाल थी बलूचिस्तान में साइकोलॉजिस्ट के हवाले से आपने मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो बैकग्राउंड भी बता दिया और मौजूदा सूरत हाल भी बता दी। नाजरीन, इस टॉपिक के साथ यहीं पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।